Welcome back students, I am your teacher Khurram. Students, we were talking about the environment and ecology. In the last lecture, we discussed what is the importance, how important it is to gather the concepts and to link the what we call as static portion with the current portion. By linking these two major what we call as major that can basically lead us to score a good marks. These two smart tricks by which we have to link the static portion with the current. What update is going regarding the, for example, what update is going regarding the law, why this law was taken into consideration, what is the amendment, what are the various things that we actually discussed in the last lecture. So we also talked about how ecology and ecosystem and what is the environment, where from the word environment was derived, and basically what were the basic components of the environment. And after that we talked about energy flow, wherein by we discussed the laws of thermodynamics, the first law of the thermodynamics, how does it govern and how does it determine about the what we call as the energy flow. Energy flow jo hai, basically it is the major component of the ecosystem. It is this energy flow जो बेसिकली एक यूनिडायरेक्शनल पाथ में चलता है, एंड इट इज द मैटर विच बेसिकली गोज अराउंड द होल इकोसिस्टम इन अ साइक्लिक मैनर. जो मैटर है बेसिकली इट गोज अराउंड वाया द साइकिल्स, लाइक वी हैव द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हमारे डिफरेंट साइकिल्स आते हैं. वी हैव द कार्बन साइकिल, वी हैव द नाइट्रोजन साइकिल, वी हैव द फॉस्फोरस साइकिल, वी हैव द वाटर साइकिल. तो बेसिकली दीज ऑल साइकिल्स लेड द मैटर to come around back to the soil and go back to the air, and the energy which flows from one tropic level to the second to the third and then to the fourth tropic level, it flows in a cyclic path. So okay fine sir, हमने इकोलॉजी का कंसेप्ट तो देखा, एनर्जी फ्लो के थोड़े बारे में उसके बारे में पता भी किया. Now what we talk about, फिर what we have to discuss further is how much efficiency, how much productivity does the ecology or ecosystem basically provides. So what is sir basic fundamentals? क्या एक प्रोडक्टिविटी की बात जब हम करते हैं तो क्या एक इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम हमको कैसे प्रोडक्टिविटी देता है? व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स? हाउ डज इट, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से द इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी? So this students, this ecological productivity, as you can see productivity, if we talk about simply what do we mean by productivity, productivity का मतलब है कि basically कितना वो fruitful है, कितना वो production दे रहा है. तो यहाँ पे अगर बात करें ecosystem या ecological total कितनी productivity है इसके बारे में, तो this refers to basically rate of growth of organic matter. तो बस इतनी सी कहानी अगर हम सरल भाषा में समझे, ऑर्गेनिक मैटर जो है बेसिकली जो एक ट्रॉपिकल लेवल 1 पे प्लांट्स जो है, यानी कि जो प्लांट्स है या जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स है, जिसमें आपके ट्रीज है, बेसिकली अगर हम उनकी बात करें, वो सन को लेके, सूरज को लेके इसकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. फिर से वही यूनिवर्सल लॉ, नथिंग कैन बी क्रिएटेड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. यहाँ पर बेसिकली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. दे बीइंग एट द बेस, they being at the base, or we can say the formation, the building pillars of the whole ecosystem, they have their very much own importance. इनकी अपनी importance काफी ज़्यादा है. अगर ये नहीं होंगे तो basically we cannot use the sun is the ultimate source of energy, and they are basically getting this energy from the sun, which is in the form of light, and this light energy is getting converted what we call as the chemical energy. और कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे वो उसका यूज करके, how do they use carbon dioxide, how do they basically produce the oxygen, and how all this goes via the total what we call as biogeochemical cycles. तो अभी हमने बोला था साइकिल जो है, मैटर जो है, it moves in a cyclic path while as the energy moves in a unidirectional path. चलो सर इतनी बात तो ठीक है. आगे की बात ये है कि T2 nature has provided a beautiful basic feature, a characteristic in ट्रॉपिक लेवल 1 को जो बेस बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है, जिसकी प्रोडक्शन को हम जो ये प्रोड्यूस करेंगे, दिस ऑर्गेनिक मैटर, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना हो रहा है बेसिकली ट्रॉपिकल लेवल 1 पे. बेसिकली दीज ट्रीज, दीज प्लांट्स, दीज ऑटोट्रॉफ्स,
they have been characterized in such a way that they are static in nature. They don't depend on others to make the food, like heterotrophs. They make their own food. And nature has blessed then the other animals to go and to eat them, and the other animals to eat and to get eaten. So they are the fundamentals. They don't need anyone. They prepare their own food. They make use of energy from the sun, and their growth starts. Now the growth starts, we mean the growth of organic matter. अब ये जो organic matter शुरू होता है per unit time, you have to remember it's per unit time per unit area by an autotroph. तो अगर आप rate of organic matter की बात करो per unit time पर यूनिट एरिया, याद रखेगा, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय एन ऑटोट्रॉफ एट ट्रॉपिकल लेवल 1। क्यों ट्रॉपिकल लेवल 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से ये प्राइमरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का आगाज, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कमेंस, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। यहीं से इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का शुरू होना स्टार्ट होता है, और यही डिपेंड करेगा कितनी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एक एरिया में होगी। तो यही वो चीज है जहां से हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कमेंसेस और इट स्टार्ट्स। बेसिकली इसी को ट्रॉपिक लेवल 1 पर जो हमारे पास ग्रोथ रेट होती है, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी मींस पहले शुरू, जितना खाना यहां से ऑर्गेनिक मैटर यहां से बनना शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट टू गेट अप टू द अदर ट्रॉपिक लेवल्स। कहानी इतनी नहीं है, आगे और भी कहानी है। ट्रॉपिक लेवल 2 के साथ क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल 3 के साथ, और ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल्स के साथ क्या होगा। तो बेसिकली ये एक फूड चेन है, और ये ट्रॉपिक फूड चेन क्या है, जितना भी खाना, जितनी भी फीडिंग सिस्टम एक हायरार्चिकल ऑर्डर में पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल्स पे हर किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, हर किसी ऑर्गेनिज्म पे या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से के थ्रू दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्गेनिज्म को मिल रही है। इस फीडिंग को एक हायरार्चिकल ऑर्डर में आगे लेने को we call as where at each segment there are different organisms. This feeding system is called as, along the different tropic levels, is called as food chain. अब ये फूड चेन यहां से बेसिकली शुरू होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब जब सेकेंडरी प्रोडक्शन की बात करें, सेकेंडरी प्रोडक्शन इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉफ लेवल। अब मतलब यहां से कौन सी प्रोडक्शन शुरू होगी, यहां से जो शुरू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्शन। सेकेंडरी प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्शन होती है? सेकेंडरी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एट हेटेरोट्रॉफ लेवल। मतलब प्लांट्स के ऊपर की जो प्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक लेवल प्रोडक्शन और द सेकेंडरी प्रोडक्शन। अब इतनी ही कहानी नहीं, अगर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, खासतौर पे अगर पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न हैज टू मेजर फैक्टर्स विच डिटरमाइन एंड गवर्न हाउ इट विल बी बेसिकली हाउ मच देयर वुड बी द रेट ऑफ ग्रोथ, and these two are the duration of the sunlight and the efficiency of the photosynthesis. Sir, what do we mean by duration of sunlight? Sir, what do we mean by efficiency of photosynthesis? When we say the duration of sunlight, तो sunlight का जिक्र हुआ तो basically photosynthesis का जिक्र हुआ। अब जितनी देर, जितनी duration, जितने टाइम तक sunlight रहेगी उतनी टाइम तक photosynthesis हो जाएगा, क्योंकि light है तो photo है तो light synthesis है। तो basically this is very dependent। और दूसरा है efficiency of फोटोसिंथेसिस। सर ठीक है, लाइट में हुई बात, सनलाइट में लाइट आ गई, क्या में फोटोसिंथेसिस हो गया, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, मगर ये कितना चलेगा, ये कैसे डिपेंड हो, कितना, क्या ये मैटर करता है, क्या ये डिफर करता है, किस लेवल पे कितना होता है? डेफिनेटली इट मैटर्स, इट चेंजेस, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाउ एफिशिएंटली द फोटोसिंथेसिस गोइंग ऑन, हाउ एफिशिएंटली द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो बेसिकली इट इज द हाउ एफिशिएंटली द फोटोसिंथेसिस विल टेंड टू टेक प्लेस, एंड इट डिपेंड्स, इट हैज मेनी फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन कि स्पीशी कौन सी है, क्या वो बड़ी है, क्या वो यूथफुल स्टेज पे है, क्या वो ओल्ड स्टेज पे है, क्या वो कौन सी स्पीशी है, हाउ मच क्लोरोफिल कंटेंट इट इज यूजिंग, वेदर दे आर वेरी ग्रीन स्पीशीज, आर दे, व्हाट इज द एज ऑफ द स्पीशी, एंड बेसिकली व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स दैट इट इज गेटिंग फ्रॉम द सॉइल। सो ऑल दीज थिंग्स विल डिटरमाइन एंड डिसाइड व्हाट एफिशिएंसी विल बी हैविंग, व्हाट हाउ एफिशिएंटली द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल फॉर्म। नाउ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हमने बात की तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमने देखी दैट इज ऑफ टू टाइप्स, GPP
minus NPP. Now sir, what is this GPP and what is this NPP? NPP is nothing. NPP is like GPP minus respiration. सर थोड़ा और समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे। पहले NPP का तो लिख दो, GPP माइनस रेस्पिरेशन। हमने जब ट्रॉपिक लेवल्स की बात की थी, हमने देखी थी एक एनर्जी जो अल्टीमेटली ऊपर पहुंचती है, सबसे पहले नेट एनर्जी। सपोज इफ आई हैव टू कैलकुलेट, ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मुझे कैलकुलेट करना है मेरे महीने का एंड का प्रॉफिट कितना है, हाउ मच आई एम गेटिंग एट द एंड, सो व्हाट विल आई जस्ट टेक द कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच मनी आई एम गेटिंग एट द एंड, और आई विल जस्ट टेक आउट और रिड्यूस माय एक्सपेंसेस विच आर देयर, और उसके बाद जो मैंने खर्चे अपने बिजनेस में किए, क्या मुझे अपने बिजनेस का एंड पे एक टोटल फ्रेमवर्क बना के देखना ये मेरा प्रॉफिट है? नहीं, पहले मैं उसमें क्या करूंगा, उसमें मैं खर्चे जिसमें बिजनेस में जितना पैसा लग गया, जितनी मैंने चीजें खरीदी, जितना मेरा रॉ मटेरियल लग गया, जितना मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, वो सब चीजें निकाल के मैं एंड में बताऊंगा मेरा ये नेट प्रॉफिट है। तो बेसिकली बात यहां पर भी वही होता है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज द जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहां से माइनस रेस्पिरेशन। सर ये रेस्पिरेशन कहां से आया? रेस्पिरेशन जरूर आएगा, मैंने पहले भी बोला था, रेस्पिरेशन बेसिकली सेकंड लॉ ही हमको बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने जब बात की थी एनर्जी फ्लो की, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको क्या बताया था? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमको एक चीज बताई थी, जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे जाती है तो एनर्जी, तो थर्मोडायनेमिक्स ने हमको ये कहा था कि नो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज 100% efficient, there is always some loss in the form of a heat. Sir, what do we mean energy is lost in the form of a heat? Obviously they will get away, it will get released in the form of a heat when this T2 wala will come to eat the T1. This is a animal, this is a plant. इसको इस प्लांट सब्सटेंस को एनिमल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए he has to use the energy, he has to consume the energy, he has to do the respiration. उसको सांस लेनी है, उसको हरकत करनी है, उसको भागा दौड़ी करनी है, तो उसको क्या होगा? he will get exhausted, he will release the heat in the form of a respiration. उसको सांस लेनी है, तो respiration minus the respiration, basically minus respiration का मतलब energy lost है, energy lost as a heat के तौर पे energy lost हो रही है यहाँ पे। so basically ये second law of thermodynamics ने बताया था, लेकिन उसके बाद की बात कितना बताया था, कितनी लॉस्ट हुई वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस रेस्पिरेशन जो निकलेगा, जितना उसको एंड में नुकसान हो गया, उसके बाद जो उसने गेन किया वही आपका एनपीपी बनता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो अगर जीपीपी की बात की जाए, व्हाट इज जीपीपी? जीपीपी इज सिंपली वी कैन से इट इज बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाय द टू द ऑटोट्रॉप्स वाया द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद माइनस जब रेस्पिरेशन करोगे और जो ऊपर अगली ऑटोट्रॉपिक लेवल्स के पास पहुंचेगा खाना, सॉरी ट्रॉपिक लेवल्स के पास खाना पहुंचेगा, ऑर्गेनिक मैटर पहुंचेगा, दैट विल बी योर एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सर तो ठीक है, इतना तो समझ आ गया, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। सर वेरी गुड, आई गॉट दैट, वट एवर प्रॉफिट आई हैव टू कैलकुलेट एट द एंड, आई हैव टू डिडक्ट माई होल एक्सपेंसेस विच आई गॉट इनटू द बिजनेस, आफ्टर दैट व्हाट माई मनी रिमेन्स दैट इज माई प्रॉफिट। बिल्कुल, यहां पर भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट ट्रॉपिक लेवल 2 बेसिकली इज जीपीपी माइनस द रेस्पिरेशन। ओके वेरी गुड, लेकिन इतनी ही बात है क्या? नहीं, बेसिकली जो एनपीपी है इट विल डिपेंड अपॉन समथिंग। एनपीपी पे एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो चीजों पर डिपेंड करेगी। अब सर किन चीजों पर डिपेंड करेगी? अरे इतना तो समझ आ गया ना, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ड्यूरेशन, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो यानी कि एनपीपी, सर एक चीज तो एनपीपी का समझ आ गया है कि एनपीपी जो है बेसिकली ये एक दो चीजों से डिटरमाइन और दो चीजों से गवर्न होता है। एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस से डिटरमाइन होता है? एक तो वो फोटोसिंथेसिस की बात करते हो, बिल्कुल एक चीज तो फोटोसिंथेसिस है जिससे एनपीपी डिटरमाइन होता है। दूसरा क्या फर्क पड़ेगा सर एनपीपी को? दूसरा रेस्पिरेशन फर्क पड़ाता है एनपीपी को। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दे आर द टू मेजर वी कैन से द रिलेटिव और कंपैरेटिव कांसेप्ट्स और द वी कैन से प्रोसेसेस व्हिच इंपैक्ट द एनपीपी। सर कैसे? अरे फोटोसिंथेसिस है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस समथिंग, सो इट प्रोड्यूसेस फूड, इट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक मैटर। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें, इट कंज्यूम्स, खर्च कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को। तो सर इससे तो नुकसान है? नुकसान नहीं है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस, इट सम एनर्जी हैज टू गेट लॉस एज पर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कितनी लॉस क्या है वो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी में देखेंगे, तो बेसिकली रेस्पिरेशन डज लॉस फोटोसिंथेसिस, बट दीज टू थिंग्स बेसिकली दे गो टुगेदर। बट वहां पे एक चीज है, अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, हमने क्या देखा था? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट और एफिशिएंसी। मगर सर फोटोसिंथेसिस बेसिकली
बेसिकली इट इज वेल ऑब्टेन्ड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन जो है नॉर्मल कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस इज 30 to 40 times more than what we call as respiration. So as a result photosynthesis is well obtained in the ecosystem. मगर सर दिक्कत है, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट, फोटो मींस लाइट, और लाइट तो सिर्फ दिन में है, दिन में सिर्फ रोशनी होती है, रात में तो अंधेरा है। हाँ, यही दिक्कत है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ऑपरेट करता है, जबकि सांस तो उसको 24 घंटे लेनी है, रेस्पायर एनर्जी तो उसको 24 घंटे लॉस करनी पड़ती है। मतलब ये है कि खाना वो बनाते जाएगा अच्छे से 30 टाइम कंज्यूम भी करता जाएगा, बट स्टिल द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस डोमिनेट्स एंड जीपीपी और एनपीपी इज वेल ऑब्टेन्ड। अगर हम बात करें इसके बाद की बात, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो या जीपीपी हो, दोनों की बात करें, दे आर बेसिकली वी कैन से दे आर मेजर्ड इन ग्राम्स पर मीटर पर ईयर, पर डे और पर ईयर। तो देयर वाज साइंटिस्ट हु कॉल्ड Whittaker did what? Whittaker, Whittaker, he measured basically efficiency, or we can say he measured the productivity of many ecosystems. तो उसने कि देखा कि there are some ecosystems which have very high, this what we call as NPP, or he measured particular ecological productivity of ecosystem. He said they have very low productivity. तो किसकी productivity high है? तो पहले उसने क्या किया, उसने पूरे अर्थ की ecological productivity की बात की, तो उसने देखा it was 320 ड्राई ग्राम्स पर मीटर पर ईयर। ठीक है, तो ये पूरे 320 उसने देखा कि ये पूरे इकोसिस्टम के, पूरे अर्थ की इकोसिस्टम एनपीपी की बात उसने की। तो उसने बोला देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच हैव अ वेरी हाई इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, और सॉरी व्हिच हैव अ वेरी हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो ऐसा क्यों है? Why are there certain areas which have a very high ecological? तो उसने बोला, विटाकर साहब ने बोला, areas having the higher ecological productivity, they are tend to be in such a way that either they have to basically degrade the whole of the lot of the organic matter into the inorganic matter, or there is a lot of leaf litter located on the surface which has to be decomposed and changed into inorganic matter, then again taken by, or now which are these higher areas? These might be the obviously tropical rainforest which have such a relative environment, उनका habitat, उनका रहन सहन, उनकी sunlight capture करने की efficiency, उनकी abundance of species, उनकी age, उनकी height, it is such that they have a higher amount of ecological productivity. जितने ज़्यादा पेड़, उतने ज़्यादा पेड़ पत्ते गिरेंगे, जितने ज़्यादा पत्ते गिरेंगे उतनी ज़्यादा बेसिकली लीफ लिटर आई मीन टू से होगा, लीफ लिटर जितना होगा उसको उतना डिग्रेड करना है, डिग्रेड उतना करना है, वो बेसिकली उतना उसकी ह्यूमिफिकेशन होगी, उतना बेसिकली वो वापस मिनरलाइजेशन करके फिर से सॉइल में चला जाएगा। तो मतलब उसको डिकम्पोज ज़्यादा करना है, माने कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये होल प्रोसेस इन एरियाज़ को, सर्टेन ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे सनलाइट एफिशिएंट है, पानी अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, ये चीज़ें डिपेंड करती है ना एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तभी कुछ एरियाज़ ऐसा है जहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। जैसे कि हायर इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वर्षावन जिनको हम कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको आप एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हो, इनको आप ऑक्सीजन लंग्स भी बोलते हो, लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हो, इनको आप कार्बन सिंक्स भी बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोन में इनका बहुत, अमेजोन रेन फॉरेस्ट नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और फिर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। दूसरा उसने बोला वी हैव द शैलो, वी हैव द स्वैम्प्स, दलदल, वी हैव द मार्शेस। ठीक है, ये चीजें उसने बता दी। एंड ही सेड वी हैव द व्हाट वी कॉल एज शैलो लेक्स, वी हैव द प्लेन्स। उसने बोला देन देयर आर सर्टेन जिनकी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू विटाकर इट वाज अप टू द 2000 ड्राई ग्राम्स। अगर उसने फिर बात की लोअर एरियाज की जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ही सेड देयर आर सर्टेन एरियाज हुज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो। दोज एरियाज आर like hot deserts, like cold deserts. There should be enough optimum conditions for a plant growth or for the organic matter. So desert में तो सिर्फ रोशनी रोशनी है, धूप ही धूप है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, पानी कैसे सर, तो वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद विटाकर और वुडवेल के बाद, उसके बाद there was a E.P. ओडम, इसने भी एक क्लासिफिकेशन दी। E.P. ओडम साहब ने भी बोला कि बेसिकली देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच हैव वेरी हाई व्हाट वी कॉल एज इंटेंस हाई इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। दोज एरियाज आर लाइक वी हैव द स्वैम्प्स, वी हैव द मार्शेस, वी हैव द शैलो लेक्स, वी हैव द एरियाज ऑफ इंटेंस एग्रीकल्चर, वी हैव द व्हाट वी कॉल एज दीस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसने बोला देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच हैव मीडियम दिस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, दरमियान के तौर पे, मिडिल में ना ज्यादा बहुत ना ज्यादा कम, दैट आर द
द लेक्स, दे आर द पॉन्ड्स, दे आर द प्लेन्स, एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये कुछ एरियाज हैं। मतलब फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल ही कम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है। वो कौन से एरियाज है? दे आर द एरियाज हैविंग द लीस्ट इकोलॉजिकल, वही जो बिटा करने बोलता, कोल्ड डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स। तो ये तो बात होगी। उसके बाद यू शुड रिमेंबर दैट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज मोर देन द मेरीन इकोसिस्टम। ओशन डीप्स, ट्रेंचेस वगैरह में बहुत कम सनलाइट पहुंचती है। इट डजंट हैव एनी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। अगर आप बात करोगे फॉरेस्ट की, दे हैव द हाईएस्ट मेरीन व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। तो ये तो बात होती है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की। ये बात होती है इकोलॉजिकल किस एरिया में कितनी ज्यादा है। तो देयर आर सम रीजंस लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हुज primary productivity or ecological productivity is very much than what we call as the marine ecosystem, and there are basically what we call as the natural ecosystems whose primary productivity is much more than the agricultural ecosystems। ठीक है, यानी कि natural vegetation की ecology primary productivity काफी ज्यादा है agricultural ecosystem की। ठीक है, agricultural ecosystem से। तो ये तो बात होगी productivity की। एक और concept आता है इसी के साथ, ecological productivity के साथ, जिसको हम ecological efficiency बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी लफ्ज से ही, नाम से ही पता चलता है कि कितनी एफिशिएंटली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। बेसिकली एनर्जी ऑफ ट्रांसफर जो, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स यानी कि फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल 1 टू द हीटरोट्रॉफ्स यानी कि ट्रॉपिक लेवल 2, बेसिकली इट्स ट्रांसफर्ड ओनली वी कैन से एज वी मूव अवे इट गेट्स डिक्रीज। हमने पिरामिड में देखा था, इट गेट्स डिक्रीज। बट व्हाट एक्चुअली इट गेट्स डिक्रीज, व्हाई, हाउ एक्चुअली, व्हाट proportion it gets decreased, we have also discussed that. So this ecological efficiency at one tropic level, यहां वाला जो है इस बेचारे का पता है, अगर इसके पास 10 किलो के 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो मौजूद 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी इसको पता है। जब मुझे अगला वाला खाना आएगा बेचारे को ज्यादा खाना पाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है उसके पास सिर्फ इसका 10% पहुंचने वाला है, यानी कि उसके पास सिर्फ 1000 बचेगी, और T3 को बिल्कुल 100 ही मिलेगी और एंड वाले को 10 ही किलो कैलोरी मिलेगी। तो कैसा इंसाफ है? कुदरत का इंसाफ है। तो बेसिकली क्यों ऐसा होता है? नेचर हैज इट्स ओन वेज ऑफ डूइंग दैट। 10,000 किलो कैलोरी, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ बायोअक्यूम, lot of what we call as this organic matter getting produced, and this goes 10 to down, and thus indicates this graph indicates amount of living matter जिसको हम बोलते हैं biomass, dry mass। तो this gets decreased when we go upper level, when you go to upper level in the tropics। तो 4T4 तक पहुंचते पहुंचते इतनी एनर्जी कम होती है कि 10 किलो कैलोरीज। तो ये जो एफिशिएंसी है 10% ट्रांसफर लॉ, this is the ecological efficiency of the ecosystem। And at the what we call, if we talk about basically youthful stage में अगर बात करेंगे, अगर net primary productivity की बात करेंगे, it is most in the terms of youthful stage, it is almost what we can say 40% as compared to what is in the old stage or what is in the younger stage। ठीक है, तो this was about the ecological efficiency। और अगर बात की जाए ecological efficiency या this 10% की बात की, तो एक चीज बता दूं, एक कहानी बता दूं, not exactly एक कहानी, एक concept तो आप लोगों ने सुना होगा which is called as environmental impact assessment। सर व्हाट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट? हमने तो लास्ट टाइम भी बात की थी। बेसिकली ये मैं ऐसे ही थोड़ा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक से यहाँ पे 10% का रेशियो जो मैंने बताया, इससे मेरे को एक चीज याद आ गया। तो मैं एक कहानी बता दूं। एक साहब थे यूएस की, एक बहुत मरीन बायोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी मरीन बायोलॉजिस्ट थी। शी राइट्स वेरी वेल, शी इज अ वेरी वेल थिंकर, शी इज अ वेरी वेल मरीन बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, एक्टिविस्ट। सो व्हाट शी डिड, शी रोट एट हर टाइम इन 1969, शी रोट अ बुक कॉल्ड एज स्प्रिंग, it's called as Silent Spring। ये साइलेंट स्प्रिंग किताब बेसिकली वल्चर्स के बारे में थी। वल्चर्स गेदर, डिकम्पोजर्स, फूड चेन के डिकम्पोजर्स, अगर वो नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो कैसे एक इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो डिकम्पोजर्स आर वेरी, यानी कि सैप्रोफाइट्स यानी कि डेट्रिवोर्स, दे हैव देयर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। एट द एंड दीज आर द वंस which decay these that which उसको डिकम्पोज करते हैं, डिके करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब क्या हुआ, बेसिक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, लाइक वी हैव क्रो, वी हैव वल्चर, दे ईट द डेड प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वल्चर्स की प्लाइट उसने देखी थी, तो शी रोट ए किताब साइलेंट स्प्रिंग, इसका नाम था
Richard Carlson, she wrote a book Silent Spring in which she wrote about the vultures pride, vultures what we call as plight. So basically she wrote about the vultures और उसने बोला था कि DDT जो है, आप जो DDT डालते हो एज ए पेस्टिसाइड अपने पौधों पे, इसको मत डाल दो, इसको कम कर दो, इसको बैन कर दो। क्यों करे? क्योंकि ये जो है 10% रेशियो ये प्रॉब्लम है, इसको पता है कि मुझे 10% एनर्जी मिलनी है, और जो इसके पास इसने अपने पौधों पर पेस्टिसाइड्स डाल दिए होंगे उससे क्या होता है, उससे एक बुरी बात होती है, जब पौधा बढ़ जाता है, ये जो इसको खाने आता है हिरन, बेसिकली हिरन को पता है 10% रेशियो, लीस्ट एनर्जी विल बी टेकन टू हिम और कंज्यूम्ड बाय हिम। सो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाटएवर मटेरियल ही इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन। और अनफॉर्चुनेटली आपने क्या किया है, यू हैव इंड्यूस्ड द पेस्ट्स, डीडीटीज वगैरह वगैरह, ताकि आप आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर सको। उसके बाद क्या होता है, ये जमा होता है यहाँ पे। उसके बाद आगे कहानी क्या होती है, अब ये वाला इसको खाने आएगा तो ये इसको खाएगा, ये बहुत खाना खाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ 10% लॉ, तो ये और बढ़ेगा दूसरे लेवल पे, और बायो मैग्निफिकेशन प्लस बायो एक्यूमुलेशन, और अल्टीमेटली T4 तक क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते जहर हर एक लेवल पे, हर एक फूड चेन पे, हर एक सेगमेंट पे, हर एक ऑर्गेनिज्म पे बढ़ता बढ़ता जाएगा, और एंड पे ये पूरा बायो मैग्निफिकेशन बोला आएगा। तो इस प्रोसेस को ही बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, यानी कि जो जहर आपने यहां पर डाला था वो जहर बढ़ते 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 T4 तक बहुत हो गया। और T4 जो था, शेर बेचारा, उसने इसको खाया, जाकाल को जाकाल ने, हिरन इस घास को जिस पे आपने जहर उगला था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, शेर के जिस्म में क्या ही जहर बढ़ गया है, क्या जहर, DDT। क्या वो कैसे बढ़ गया, इनडायरेक्टली थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और दिस ऑर्गेनिक मैटर। और बेसिकली जब शेर मर गया तो यहीं से कहानी शुरू होती है वल्चर्स की, यहीं से प्लाइट शुरू होता है वल्चर्स का, उनके मरने की बदकिस्मत की कहानी। वल्चर्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वो मरेंगे तो कौन डिकम्पोज करेगा, कौन डिकम्पोज करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिकम्पोज करने के लिए वल्चर्स को क्या करने पड़ते हैं, दे कम एंड दे ईट दिस डेड टाइगर और द लायन। नाउ दे डोंट नो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंड्यूस्ड और इजेक्टेड what we call as DDTs here. Now these vultures are becoming extinct, they are dying. This is a bigger concept. So this was basically, this I told you because of the 10% law of this biomagnification, bioaccumulation. Hope you find these things, you should know these things. What is a book written, when was it written? और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस बुक ने तहलका मचा दिया यूएस में। एनवायरमेंट इंपैक्ट एस्टिमेट की बात हो रही थी ना, उसके बाद उसने बुक ने तहलका मचा दिया, नई बुक, बहुत रेवोल्यूशनरी बुक है। इसके बाद क्या करो, यूएस में एनवायरमेंटल इंपैक्ट एस्टिमेट पर काम होने लगा। जितने भी काम करने हैं आपको एनवायरमेंट को लेके, पहले सरकार से पूछना पड़ेगा, वो एसेस करेगी क्या ये सही है, क्या ये हाईवे बना रहा है, क्या इससे फर्क तो नहीं पड़ रहा नेशनल पार्क को, क्या ये कोई स्पीशी खत्म तो नहीं हो रही, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। व्हाटएवर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, व्हाटएवर यू हैव टू डू, you have to get NOC for the governments, and government will evaluate, it will interpret, it will monitor, it will see what are the impacts, what are the causes, what you want, what would be the consequences. If it finds it okay, it will let you to make it, but then it has its own processes, it has the public hearing, it has that buffer zone, particular square kilometer which it has measured, so वो EIA में पूरा देखेंगे। So this कहानी basically I told you EIA because of this 10%, and 10% से तो मैंने आपको DDT वाले वल्चर का प्लाइट बता दिया। So students, I hope it was okay for today. Ecological productivity अच्छे से समझ आया होगा। That's for all today. Thank you. God bless you.